Hello everyone, my name is Ekansh. I hope you all are safe and utilizing your time during this lockdown period. So, from today onwards, we are starting a vocabulary series and we will learn 10 words on a daily basis. And if you follow this series till the end, then trust me, you will be able to learn many words because those words which we will learn in this series are used very oftenly in a newspaper, in a novel, and in any of the news channel. You can easily find these words. Okay, so let's start the series. So today is the day one, and the theme is words for mature minds. So let's start the series. So the first word is vicarious. कैसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे? विकेरियस. ओके, सो अब what does it mean? What do you mean by the term vicarious? I'm giving you one example so that you can learn this word very easily. So vicarious means like there are two ways to travel. For example, there are two ways to travel. One, by buying a ticket and going to your destination, say New York. Okay, and the other by reading travel stories and travel some circulars about New York. Okay, so in the first instance you have enjoyed your travel experience directly, and in the second instance you have enjoyed it vicariously. Okay, so I hope now you are able to understand the concept of this word. Okay, so vicariously means a illusion, like if you are reading some book, or if you are watching some if you are watching some clips related to the particular destination, and you are feeling that you are at the same place, so that feeling is known as vicarious. Okay, so another example. For example, a child is learning about life when he pretends. Okay, a child is learning about life when he pretends, when he plays house or doctor in our childhood. I hope most of us have played this game of doctor or building a house. So, of course, he's fully living the life, or we were fully living the life. Okay, but he is also living adult life. Okay, not directly but vicariously. Okay, so when he is older and more mature, he will live less vicariously and more actually. So are you getting my point, what I am trying to say? So this is the meaning of the word vicariously. Okay, तो चलिए बढ़ते हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या होता है. देखिए, विकेरियस एक कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं कह सकते आप इसका. ये एक फ्रेज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इसको. आप कह सकते हैं इसको विकेरियसली मीन्स क्या होता है कि जब आप कम रियलिस्टिक होते हो ना, जब आप वो कम होते हो. मीन्स कोई एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहा है तो वो विकेरियसली लाइफ जी रहा है. कोई एक्टर है, वो किसी किलर का रोल प्ले कर रहा है, तो वो असली में तो किलर नहीं है ना, तो वो उसका वो विकेरियसली वो करेक्टर प्ले कर रहा है, मतलब वो किसी एक करेक्टर में घुसा हुआ है. तो यही है विकेरियस. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. रेशनलाइज. अब देखिए रेशनलाइज का क्या मीनिंग होता है. अब इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ फादर हु इज़ एंग्री. ओके, अ फादर हु इज़ एंग्री मे स्पैंक. स्पैंक मतलब होता है थप्पड़. ठीक है, इफ पापा हैं आपके, वो बहुत गुस्सा हैं. ठीक है, वो अपने बेटे को थप्पड़ मार सकते हैं. ठीक है, मतलब अपनी पर्सनल फीलिंग्स के लिए. उनको मान लो वो अपने ऑफिस से आए, वो अपने किसी ऑफिस वर्क की वजह से परेशान है. आप वो घर पे आते हैं, आप कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करते हैं. ऑल्दो आप थप्पड़ खाने लायक आपने वो काम अगर नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी आपको थप्पड़ पड़ जाता है. तो वो क्यों पड़ जाता है, वही मैं आपको समझाऊंगा मैं. तो क्या होता है ना कि सेल्फ डिफेंस में
मतलब कि आप कह सकते हो, सेल्फ डिफेंस तो हम इसको नहीं कहेंगे, आप कह सकते हो कि हाँ, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस, मतलब अब जैसे मान लो पापा पे क्वेश्चन हुआ कि इसकी इतनी गलती नहीं थी लेकिन आपने क्यों मारा इसे, सो इन सेल्फ डिफेंस ही विल रेशनलाइज हिज एक्शन बाय मेकिंग हिमसेल्फ बिलीव दैट द स्पैंकिंग हैज़ बीन डन फॉर द गुड ऑफ द चाइल्ड। ठीक है ना। तो अ फादर हु इज़ एंग्री मे स्पैंक हिज बॉय merely to relieve his own personal feelings, but in self defense, he will rationalize his action by making himself believe that the spanking has been done for the good of the child. समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप ऐसे कह सकते हो कि कोई क्वेश्चन कर रहा है, अगर आपकी मदर हो गया, आपके फादर हो गया, आपका बड़ा भाई हो गया, कोई भी हो गया, अगर आप किसी ने थप्पड़ मारा आपको और क्वेश्चन हुआ उस पर कि यार क्यों थप्पड़ मारा, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में कह सकते हैं कि मैंने उसकी भलाई के लिए थप्पड़ मारा। तो ये है रैशनलाइज। ठीक है ना। और क्वेश्चन तभी करेंगे ना लोग जब आपकी गलती नहीं होगी। आपकी गलती पे अगर थप्पड़ पड़ा है तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सबको पता है आपकी गलती है। ठीक। तो ये होता है रैशनलाइज। नेक्स्ट वर्ड ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का अगर एक वर्ड में मैं आंसर दूं तो वो होता है मिलनसार। ग्रेगेरियस मीन्स मिलनसार। ठीक है। अब एक वर्ड होता है, ये एक लैटिन वर्ड होता है फ्लॉक। फ्लॉक मतलब क्या होता है, जानवरों का समूह। एक वर्ड होता है फ्लॉक। ठीक है। क्या वर्ड है, वर्ड है वो आपका फ्लॉक, जिसे हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना, ये होता है आपका फ्लॉक। ठीक। सो दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रेक्स, जिसको बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है। एज ऑफ शीप, फ्लॉक क्या होता है, एज ऑफ शीप होते हैं ना, शीप भेड़, भेड़ों का समूह। एंड यू नो शीप लाइक टू स्टे टुगेदर। समझे ना आप लोग फ्लॉक क्या होता है। अब इफ़ यू आर अ ग्रेगेरियस टाइप ऑफ अ पर्सन, सो यू आर अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, वी कैन से अ गुड मिक्सर। मीन्स आप बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हो दूसरे के साथ, आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेगेरियस। सो यू लाइक टू बी विद अदर पीपल। ठीक है ना। तो ये होता है आपका ग्रेगेरियस। नेक्स्ट ऑब्सीक्वस। अब ऑब्सीक्वस क्या होता है, अगर मैं एक वर्ड में लिखूं तो ऑब्सीक्वस का मतलब होता है चापलूस। जैसे आप लोग बोलते हो ना चापलूसी करना। आई होप मैनी ऑफ यू आर अवेयर विद दिस वर्ड चापलूस। तो चापलूस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको बताया मैंने, ऑब्सीक्वस। ऑब्सीक्वस इसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ वेटर इन अ रेस्टोरेंट, so if you are a waiter in a restaurant and you believe that you are the type who will tip him well। ठीक है ना। मैं किसी रेस्टोरेंट में गया हुआ हूँ और जो वेटर है ना वो मेरे पास, उसने पता, उसको लग गया यार कि ये मेरे को टिप दे के जा सकते हैं, तो वो क्या करेगा, मेरी चापलूसी करेगा। ठीक है ना। सो वंस ही रिकग्नाइज यू दैट यू आर द वन हु कैन टिप हिम वेल, सो the thing is we have to watch how obsequious he will be. Now he will bow to you and attend on your slightest wish. So what is the meaning of bow? What does it mean, bow? I don't know how many of you are aware with the word bow. Bow, bow means to bend your head or the upper part of your body forward and down as a sign of respect. So you can say, वो वी कैन से अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। आप किसी को दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करते हो, या फिर आप किसी के सामने सिर झुकाते हो, किसी के पैर छूते हो। सो ऑल दिस जेस्चर्स कम्स अंडर दिस वर्ड बो। ओके, समझ गया ना आप लोग ऑब्सीक्यूअस। नेक्स्ट वर्ड मॉडलिन। ठीक है ना, मॉडलिन। अब व्हाट डज इट मीन मॉडलिन? मॉडलिन मीन्स मॉडलिन, वी कैन से अ मॉडलिन पर्सन इज़ द वन who is super sentimental,
मीन्स जो इंसान बहुत ज़्यादा भावुक होता है ना, इमोशनल होता है ना, बहुत ज़्यादा जो इंसान आपका इमोशनल होता है, इमोशनल हो गया, सेंटीमेंटल, वी कैन से सुपर सेंटीमेंटल, सेंटीमेंटल का भी एक लेवल ऊपर, हु क्राइज ईजली एंड ऑफनली विदाउट मच कॉज, कोई रीज़न नहीं है तब भी रो रहे हैं। देखा होगा मैनी ऑफ द लेडीज़, मैनी ऑफ द गर्ल्स, लाइक जब वो कोई सीरियल देख लिया जिसमें कि कोई इमोशनल सीन आया तो रोने लग जाते हैं। तो वही स्टेज होती है मॉडलिंग वाली, ठीक है ना, ये होता है मॉडलिंग। अब अब जैसे कि एक और भी इसका यूज़ होता है, जैसे कि आप कह सकते हो ये वहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। आप कह सकते हो दोज हु हैव बी मेड फुलिश एंड सिली बाय टू मच ड्रिंकिंग, मीन्स आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली और आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पर भी ये वर्ड आ सकता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, आप मैनी ऑफ अस नोस की जब भी कोई इंसान ड्रिंक करता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, अपने अंदर की सारी बातें कह देता है, तो वो स्टेज मॉडलिंग कह सकते हैं आप उसको, जिसे कहते हैं ना नादानी में, ना समझ, उस टाइम पर आप अपने सारा माइंड आपका उस समय किसी अलग ही दुनिया में चल रहा होता है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडलिंग। नेक्स्ट, एसेटिक। एसेटिक इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, मीन्स एसेटिक हम लोगों को पता होगा, मैनी ऑफ अस नो कि भैया क्या होता है एसेटिक। एसेटिक वो होते हैं जो कि दोस हु प्रैक्टिसिंग एक्सट्रीम सेल्फ डिनाइल, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जो आत्मत्याग कर देते हैं ना, सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी वो होते हैं एसेटिक, इसका मतलब होता है एसेटिक, ठीक है। योगी बाबा टाइप के बन जाते हैं ना, जो योगी से संबंध, आपके सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो एसेटिक होता है, ठीक है। अब अगला एक वर्ड होता है आपका, अगला वर्ड देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट, पेंडर। पेंडर क्या होता है, अब देखो आप, पेंडर जो एक्चुअली वर्ड है ना, इसका एक मीनिंग नहीं है, पेंडर बहुत तरीके से यूज़ होता है। पेंडर एक पर्टिकुलर आप कह नहीं कह सकते कि एक कोई वर्ड है, आपको बहुत सारे मीनिंग दिखेंगे इसके। पेंडर का मतलब आपका होता है, दलाल भी कहते हैं पेंडर को, जो इंसान दलाली लेता है, जो ब्लैक में टिकट बेचता है, उसको भी आप पेंडर कहते हैं, ठीक है। पेंडर का मतलब ये भी होता है, ठीक है, और एक तरीके से इसका मतलब एनकरेज करना भी होता है, ठीक है। और आप कह सकते हो अच्छा, इसके मैं ना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, पेंडर का एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है। ये जो पेंडर है ना, बेसिकली ये एनकरेजमेंट किसका है, एनकरेजमेंट टू, यू कैन से इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है ना, इलीगल एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना। अगर कुछ गलत हो रहा है, आप किसी को रिश्वत दे रहे हो मतलब, और एक ग्रुप बनता जा रहा है, लोग इसको एनकरेज कर रहे हैं, हमें पता है कि यार आजकल कितना ज़्यादा करप्शन है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम ही लोग तो उसको एनकरेज करते हैं, हम ही लोग तो करप्ट कर रहे हैं। हम लोग जब रिश्वत देंगे ही नहीं, हम ब्राइब देंगे ही नहीं, तो लोग लेंगे ही नहीं, है ना। जब देने वाला ही नहीं होगा ब्राइब, तो लेगा कैसे कोई, है ना। तो बेसिकली ये सब एक पेंडर ही है, ठीक है ना, तो ये होता है पेंडर। नेक्स्ट वर्ड, सब्लिमेट। अब सब्लिमेट क्या होता है, देखते हैं सब्लिमेट क्या होता है। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं, सब्लिमेट आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने प्रोसेस भी पढ़ा होगा, अगर आपने केमिस्ट्री में एक प्रोसेस भी होता है सब्लिमेशन का, ठीक है ना, तो वो एक अलग है। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन एक तरीके का ट्रांजिशन होता है ना, कि सब्सटेंस का जो कि सॉलिड से गैस स्टेट में जाता है, वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट से होता हुआ कोई चीज़ अगर सॉलिड से गैस बन रही है, मतलब बिना लिक्विड स्टेट से पास हुए, है ना, तो कोई चीज़ अगर है वो एकदम से गैस बन जा रही है बिना किसी लिक्विड स्टेज में हुए, तो वो क्या होता है, वो सब्लिमेशन होता है ना। तो उसी से रिलेटेड है सब्लिमेट। अब देखिए सब्लिमेट क्या होता है, सब्लिमेट बेसिकली हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी को एक्साइटेड करना, मतलब किसी को अगर कोई जना एकदम से एक्साइट हो गया ना किसी चीज़ को सुन के, आपने किसी को एकदम से कुछ ऐसा बता दिया, एकदम से वो खुशी के मारे झूम उठा, आपने बता दिया यार कि हम लोग कल ट्रिप पे निकल रहे हैं, तो वो एकदम एकदम से वो क्या हो गया, एक्साइट हो गया, मतलब वो सब्लिमेट हो गया।
ये होता है सब्लिमेट का मतलब, ठीक है ना, ये होता है सब्लिमेट, ठीक है। अच्छा, अब और भी देख लेते हैं, अगर हम इसके एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं कुछ, अगर एग्जाम्पल से हम लोग समझ पाएँ कि सब्लिमेट क्या होता है तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को बोलूँगा, ठीक है ना, आप लोग देखिएगा कि क्या है, मतलब कितना रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो जैसे कि अ फीमेल हुज अनकॉन्शियस डिज़ायर इज़ टू एनस्लेव मैन, मतलब कि अब एनस्लेव क्या होता है, एक वर्ड मैंने अभी लिया आप लोगों से, एनस्लेव। एनस्लेव मतलब होता है किसी को स्लेव बनाना, ठीक है ना। जो जो वर्ड इसमें आते जा रहे हैं ना, आप लोग इनको भी लिख सकते हैं। एनस्लेव का मतलब होता है टू मेक अ स्लेव, ठीक। इसको थोड़ा और साफ करके लिख लेते हैं। AVE, ठीक, इंस्लेव। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अ फीमेल हुज अनकॉन्शियस डिज़ायर इज टू इंस्लेव मैन टू डोमिनेट एंड डिस्ट्रॉय ऑल मेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल है, उसकी ये मतलब एक अनकॉन्शियस डिज़ायर है उसकी कि सारे ही जो मेंस हैं वो नौकर बन के रहें। जैसे माना जाता है कि जो फीमेल्स हैं आजकल ऐसी, अब तो ऐसा नहीं है लेकिन पहले ऐसा ही होता था कि लोगों को ये समझाता जाता था कि फ़ीमेल्स को कि वो घर में बस एक नौकर की तरह काम करें पूरे दिन, है ना, जो बोलें मेल्स वही करें। तो एक तरीके से ये बेसिकली स्लेव ही होता था। तो ऐसा अगर कोई एक मान लीजिए कोई फीमेल है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके, काफ़ी ज़्यादा वो उत्तेजित हो जाती है जब उसको इस चीज़ के बारे में, जब वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जब वो सोचती है, तो वो उसके अंदर एक डिज़ायर उत्पन्न होती है, एक डिज़ायर उसको आती है कि यार सारे के सारे मेल्स को, सारे के सारे मेंस को स्लेव बना दिया जाए, सारे मेल्स को डिस्ट्रॉय कर दो, इनको डोमिनेट करो पूरी तरह से। और वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है एंड बिकम वेरी एनर्जेटिक, और लाइक कि वो एक लीडर की तरह अपने आप को उस समय पे महसूस कर रही होती है कि मैं एक लीडर की तरह इस पे काम करूँगी, है ना। तो ये एक स्टेज होती है sublimate. So in that case only her psychiatrist knows that she is sublimating, right? So this is the meaning of sublimate, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि what is the meaning of sublimate, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड wanton। wanton क्या होता है, देखिए wanton का सिंपल सा एक मतलब होता है, जो कि ये होता है कि मतलब आप कह सकते हो कि जिसको अपने ऊपर कंट्रोल ना हो, है ना, जो अनियंत्रित हो जाए, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो चंचल, है ना, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एकदम जिसका मन काफ़ी चंचल है, जो कंट्रोल नहीं रख पाता अपने ऊपर, वो सारे के सारे वांटन हैं, ठीक है ना। और इन शॉर्ट इसका एक मतलब और भी है कि वांटन एक तरीके से क्या होता है ना कि अनियंत्रित, तो इसका मीनिंग हुआ, लेकिन अब अनियंत्रित जब इंसान हो जाएगा तो क्या क्या इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। अनियंत्रित मीन्स अनकंट्रोलेबल, है ना, ठीक है ना, अनकंट्रोलेबल। राइटिंग थोड़ी गंदी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को मैं बोलता जा रहा हूँ। अनकंट्रोलेबल मीन्स आपका कंट्रोल नहीं है। अब अनकंट्रोलेबल से क्या क्या हो सकते हैं, यू आर ड्राइविंग, ठीक है, और यू लॉस्ट योर कंट्रोल, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। ये क्या है, ये इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक। दूसरा, आपने किसी को, कोई आपने ऐसा एक्शन किया जिससे कि दूसरा हर्ट हुआ, ये तो अनइंटेंशनल था ना, लेकिन आपने इंटेंशनली किसी को मारा, किसी की लड़ाई हो गई किसी से, उसने उसे मार दिया, ठीक है ना, जिसका कोई रीज़न नहीं, मतलब बिना किसी वैलिड रीज़न के आपने किसी को हानि पहुंचाई, आपने किसी को हर्ट किया, ठीक है ना। मीन्स हर्टिंग समवन, हर्टिंग समवन विदाउट एनी रीज़न, ठीक है ना, हर्टिंग समवन विदाउट एनी रीज़न, किसी चीज़ को डैमेज करना, ठीक है ना, कोई ऐसा एक्शन जो किया गया हो किसी को हर्ट करने के लिए बिना किसी रीज़न के, मतलब उसके पीछे कोई भी मतलब एक वैलिड रीज़न नहीं है, वो होता है वांटन, ठीक है ना। इसका ये होता है वांटन। तो इसे आप कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल, ठीक है ना। अब जैसे कोई इंसान, जैसे कि
शराब पी लिया, शराब पीने के बाद वो कंट्रोल से बाहर हो गया, अपने रोड पे हंगामा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है ना, उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे वॉन्टन वाले स्टेज होते हैं, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट इफीट। इफीट क्या होता है? देखिए, इफीट का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि इफीट मतलब एक तरीके से हो जाता है पावरलेस, यू कैन से पावरलेस, वीक, ठीक। ये सारे के सारे मतलब होते हैं किसके? इफीट के। अब फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड people start ignoring you. They are not following your orders because they think that you are not a same person which you used to be earlier. आपकी पावर कम हो गई है, आप वीक हो गए हो, अब आपका उतना ब्रेन नहीं चलता कि आप किसी को लीड कर पाओ। यू आर नॉट केपेबल इनफ टू लीड एनी ग्रुप, ठीक है। सो ये जब स्टेज आ जाती है ना, तो उस लीडर को हम कह देते हैं इफीट लीडर। क्या कह देते हैं इसको? हम इसको बोल देते हैं इफीट लीडर, ठीक है। सो हाउ द पावरफुल लीडर बिकम्स द इफीट लीडर? सो द प्रोसेस, आप समझ रहे हो ना कि किन कारणों से वो एक इफीट लीडर बना है, उसी को कहते हैं हम इफीट, ठीक है ना। तो ये होता है इफीट। तो आज के 10 वर्ड्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप यू ऑल हैव इन्जॉयड दिस सेशन वेल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं कल। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।